Yes, sir, I can. Okay, that's great. चलो, सर्कल टॉपिक हमने शुरू किया नहीं था ना कुछ भी? No, sir. We have not started. Okay, fine. ठीक है. So let's start with the circle. Okay. So what do you know about the circle? What do you know about the circle? First you tell me. जो भी जानते हो बताओ. Hello. Sir, circles are plane figures. Okay. And Then they have a chord, a radius. okay. Chord होता है, radius होता है, बहुत बढ़िया. और Sir, anything else? sir, that's it. That's it. Okay, no problem. So just give me a second. I would like to show you something here. Okay. Can you see the figure here? Can you see the figure? Yes, sir, I can. Okay. In this figure, you can see I'm showing you these things. Radius. So radius, I think you know about the radius. Am I right? Yes, sir. What is diameter? The diameter is the full length of the circle. Okay, that means passes through the center. Diameter की खासियत क्या होती है? ये always center से pass करता है. Can you see it? Yes, If sir. it will not pass through the center, it will not be the diameter. Understand? Yes, sir. अगर ये center से pass नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा ये? It will become a chord. Chord की खासियत देखो, chord circle के अंदर में ही होता है. Can you see it? Yes, sir. It's a straight line and it will be inside the circle. That means it will be on the 2 points on the circle. You have to join it, but it's not going from the diameter. Okay. What about the second? Second देखो बाहर निकल जाता है कट करते हुए. Can you see it? Yes, sir. And what about tangent? Tangent is a line which just touches the circle. Can you see here? Yes, sir. How it's going to touch it? Can you see that? Yes, sir. This is tangent. This is what? Tangent. And tangent touches the circle at only one point. कितने पॉइंट्स पे टच करता है? सिर्फ एक पॉइंट पर. Only one point. Do you clear? Yes, sir. This is known as what? Arc. Circumference को कहीं से काट लो तो क्या बन जाएगा वो? Arc. Do you understand? Yes, sir. These are clear with you? Yes, sir. किसको क्या कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, ये सभी क्लियर है आपसे या नहीं है? बताओ. Yes, sir, I have understood. Understood. Okay. एक इसमें सबसे important point note करो. Diameter is the biggest chord. या आप ऐसे भी लिख सकते हो the biggest chord of the circle is a diameter. मतलब सबसे बड़ा chord कौन होगा सर्कल का? तो diameter. Do you clear? Yes, sir. Make a note of it, please. नोट हो गया वो पार्ट? 1 second, sir. ओके. Yes, sir. Okay. Now in the second figure, can you see something in the second figure? Yes, sir. क्या दिख रहा है आपको? Sector, arc, and segment. Okay. So देखो सबसे पहले arc पर ध्यान दो. Can you see the arc? Can you see the arc? Okay. So arc को आपने center से add कर दिया. क्या कर दिया जी आपने? Arc को Center. ये arc बना हुआ है. Can you see this? इस arc को हमने center से add कर दिया. This is my center point. This is what? Center point. तो क्या बन जाएगा? This area will be known as what?
sector. क्या हो जाएगा ये? Sector. And if I have joined the arc with the chords, देखो मैंने सेंटर में नहीं लेके क्या, ये क्या है, ये कॉर्ड है ना हमारे पास, राइट? सो अगर हमने कॉर्ड से आर्क को, ये आर्क हमारा ए बी आर्क देख रहे हो आप, ये वाला लाइन, आई एम जस्ट ये सर्कल पे, कैन यू सी इट? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्क बोलेंगे, राइट? अगर आर्क को हमने कॉर्ड से ज्वाइन करा दिया, सो दिस एरिया विल बी नोन एज व्हाट? सेगमेंट. डू यू क्लियर विद बाय दिस थिंग? कोई डाउट है इसमें? नो सर. नो डाउट. ओके गुड, परफेक्ट. तो यहाँ पर जी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं फिनिश, कि कौन क्या है, किसको क्या कहते हैं. तो आपने लर्न किया है व्हाट इज रेडियस, डाया, कॉर्ड, सेकेंट, व्हाट इज टैंजेंट, व्हाट इज आर्क, व्हाट इज सेक्टर एंड व्हाट इज सेगमेंट. Yes, sir. So do you clear about this? Yes, sir. Any problem? No, sir. No problem. Okay. Do you know what is concentric circles? What is concentric circle? No, sir. I don't know. Don't know. इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि सर्कल में ये सारी चीजें होती हैं, सो आपको जानना जरूरी है. So just read it please. I will upload the figure. Concentric circles which have the same center and different radii are called concentric. Circles which have the same center and different radii are called concentric circle. अब देखो ये सर्कल है मेरा, कैन यू सी दैट? Yes, sir. इसका सेंटर कहाँ होगा? तो इसका सेंटर जी ये है. कोई दिक्कत? No, sir. Okay, now I'm going to draw another circle. Can you see my another circle? Yes, sir. इसका रेडियस कौन होगा? इसका भी रेडियस यही होगा. Yes, sir. सो दो सर्कल्स का सेम रेडियस है. क्या है? They have the same radius, sir. Now I will draw another circle. Give me a moment. Are you able to see my another circle? Yes, sir. इसका भी रेडियस कौन हो गया? सेम, वही पॉइंट. मीन सेम सेंटर से, विद द सेम सेंटर यू हैव ड्रॉन डिफरेंट रेडियाई सर्कल. इसका रेडियस मान लो 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12. ये कितना हो जाएगा? 14. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल्स. कैन वी से इट और नॉट? टेल मी, Yes, कैन sir. वी डू इट और नॉट? सो ये क्या हो जाएंगे? दिस विल बी नोन एज, दिस विल बी नोन एज concentric circles. इनको क्या बोलेंगे हम लोग? Concentric circles बोलेंगे. Do you clear about the concentric circles now? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? No, sir. I have no doubt. No doubt. Okay, good. तो arc of circle सीख लिया, ये सब सीख लिया. That is good. Now in it we are going to learn something new. Okay? Yes, sir. अच्छा, congruent याद है ना? Congruent chapter? Yes, sir. Okay, good. ठीक है. इसके बाद एक और आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? Sir, Four-sided closed figure is known as quadrilateral. yes, sir. यही पढ़ाया है ना? Yes, sir. Four-sided. Four-sided closed figure is known as quadrilateral. उसमें एक वर्ड ऐड हो गया जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्या वर्ड ऐड हो गया? Cyclic. quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. Yes, sir. तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैं समझाता हूँ. ये हमारा सर्कल हो गया गाइस, ठीक है? सर्कल पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो, लाइक दिस. चाहे कैसा भी हो, डजंट मैटर. कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स होते हैं, क्या होते हैं? Vertex, sir. क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स या कॉर्नर्स, दैट शुड बी ऑन सर्कल. दैट शुड बी ऑन Circle, sir. सर्कल. तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. If you draw like this, ये भी तो quadrilateral है, but it is cyclic quadrilateral. Is it a cyclic quadrilateral? No, this is not a cyclic quadrilateral. Why? Because all corners are not on circle. Yes, sir. All corners are, all vertices are not lying on circle. That's why it's not. This is cyclic quadrilateral. Do you clear? Yes, sir. Any doubt, anything?
तो आपने ये सारी चीजें सीख ली कि कहते किसको। अब ये बोलोगे सर ये क्यों सिखाए जा रहे हो, इसका बाद में यूज आएगा। क्या आएगा? बाद में हमको यूज आना है। नेम्स जानने जरूरी है पहले कि बोलते किसको है, होता क्या है वो। मैं बोलूंगा ओके ड्रॉ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप लोग सर ये होता क्या है ये तो बताओ पहले। Yes, तो sir. इसीलिए पहले मैंने ये सारी चीज आपको समझाई कि ये होती है जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने बोल दिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लो, आप लोग सर ये होता क्या, मुझे पता ही नहीं है मैं कैसे ड्रॉ करूंगी। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग सेक्टर, आई एम टॉकिंग सेगमेंट। तो पहले नाम तो मालूम होना चाहिए Yes, sir. Yes, sir. कि होता क्या है, कौन है ये, कहां से आ गई ये। सो वी शुड नो अबाउट दैम। तो अभी क्लियर है इन सबके नेम्स। Yes, sir. प्रॉपर्टीज वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले नेम्स होते क्या है, कौन है ये। ठीक है, अब सबसे पहले इंसान का नाम जानोगे तब तो जानोगे कि हाँ वो अच्छा है, बुरा है, बदमाश है, क्या है, कि ऐसे ही जान जाओगे। बताओ, पहले नेम पता ही नहीं है, कह रहे जी वो बदमाश, कौन बदमाश है जी, अरे नाम तो बताओ। Yes, तो sir. दैट इज द थिंग। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब हम चलते हैं एक्चुअल प्रॉपर्टीज में। किस में चलते हैं? Actual properties. Sir. एक्चुअल प्रॉपर्टीज में। एक बात बताओ जरा मुझे, if you have a circle of 10 centimeter radius, okay, Yes, sir. and I am drawing another circle of 10 centimeter radius, both the circles will be same or different? Sir. Yes. Sir. Different, sir. कैसे different हो जाएगा? No, sir. Actually, it will be same only, sir. कैसे same हो जाएगा? Sir, because the radius is the same. रेडियस इज सेम, मतलब अगर हम रेड वाले को उठा के ब्लैक वाले के ऊपर ओवरलैप कराएं, सो इट विल बी ओवरलैप. Yes, sir. So can we say both the circles are congruent? Yes, sir. We can say that. Congruent मतलब overlap कर जाना, right? So theorem one ये कहता है two circles are congruent. ये दोनों circles क्या हो जाएंगे? Congruent if they have equal radii. अगर equal radii तो obviously ये होगा ना कि 10 सेंटीमीटर का सर्कल आप इसको उठा के उसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो ओवरलैप करेगा ना जी, या नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा, करेक्ट? Yes. सो प्लीज मेक अ नोट, थ्योरम लिखो, फिगर बाद में बनाओगे आप। थ्योरम इज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडिई। क्लियर है? Yes, sir. नोट डाउन कर लो, फिगर बाद में बनाना। Okay, sir. डन? 1 second, sir. ओके, Yes, sir. ओके, shall we move? Yes, sir. Okay, fine, give me a moment. Okay, another one giving you. प्लीज आप पहले इसको लिखो, पढ़ो एक बार, फिर मैं समझाऊंगा क्या है मतलब है। Yes, sir. गो फॉर इट।
Yes, sir. Okay. Now I will explain to you. Equal chords of circle sustain equal angle at the center. इसका मतलब क्या है मैं भी समझाता हूं. Suppose that I have a circle here. What I have? Circle. Now I am taking one chord here. अच्छा, center point हम यहाँ बना लेते हैं. ठीक है. One chord here and some another chord here. कहीं भी बना लो chord. यहाँ बना लो, इधर बना लो, आपकी मर्जी. Your choice. Understand? Yes, sir. Now I am saying this is AB and this is CD. कोई दिक्कत है? No, sir. According to the rule, equal chords मतलब AB chord will be equal to CD chord. ठीक है? Yes, So sir. now where they will make angle? They will make angle at the center. So this is the angle made by whom? AB, right? Yes, sir. And this is the angle made by whom? By CD. Can you see that? Yes, sir, I can. So condition is if chords are equal, इसको मैं O नाम देता हूं. If chords are equal, then angles at the center must be also equal. मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा. If they are equal. Do you understand? Yes, sir. कोई इसमें डाउट या कुछ पूछना हो? समझ नहीं आया? Sir, I've सिंपल सी बात, कॉर्ड अगर इक्वल है तो वो इक्वल एंगल बनाएगा सेंटर पर. अंडरस्टैंड? Yes, sir. कुछ पूछना है इसमें? No, sir. क्लियर है ना? इन Yes, सब का अप्लाई करने के लिए मैं सिखाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं. अभी थ्योरम्स पढ़ते हैं. ठीक है? Yes, sir. जस्ट उल्टा थ्योरम, इसका उल्टा भाई. उल्टा भाई क्या बोलेगा कि जी एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा. क्या बोलेगा उल्टा भाई इसका? Sir, if एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा. अभी अभी क्या बोला? कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल. उल्टा क्या हो जाएगा? एंगल इक्वल जी तो कॉर्ड इक्वल. डू यू क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट इस पे? Yes, sir. हाँ, No, sir, I've understood everything. अंडरस्टूड. नेक्स्ट कहता है जी अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो आर्क भी इक्वल होगा. क्या कहता है? रिजिड. If two arcs of a circle are congruent, then the corresponding chords are equal. सो देखो ये आर्क मैंने बनाया AB और ये आर्क मैंने बनाया यहाँ CD. कैन यू सी दैट? Yes, sir, I can. सो इफ द आर्क, इसको ऐसे डिनोट करते हैं आर्क को. ठीक है? इफ द आर्क्स आर इक्वल देयरफॉर कॉर्ड भी तो इन्हीं की मदद से बनता है. कैन यू सी दैट? Yes, sir, I can. तो कॉर्ड भी इनकी मदद से बनेगा तो कॉर्ड मस्ट बी इक्वल. डू यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आर्क इक्वल हैं तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे. राइट? और जस्ट इसका उल्टा, अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होंगे. अंडरस्टैंड? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तो उल्टा याद रखिएगा. ठीक है? Yes, sir. तो ये सब तो इनके छोटे मोटे नन्हे मुन्ने भाई हैं. ठीक है? छोटे मोटे नन्हे मुन्ने भाई हैं ये लोग. इनका उतना कोई महत्व नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. ठीक है? सो थ्योरम 4 हो गया. थ्योरम 5 की कोई जरूरत नहीं है. We will go for theorem 6 directly. Please make a note of this. This is VVI theorem. This is what? VVI theorem. Yes. Make a note fast. नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा है क्वेश्चन में? सॉरी थ्योरम में पढ़ो जरा. Perpendicular form from the circle. The No, perpendicular from the center of circle to chord. To a chord. मतलब कहता क्या है कि एक सर्कल में chord, देखो chord बना दिया मैंने.
Yes, sir. तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्या करना है जी हमको? You have to make it perpendicular from the center, sir. गुड. सो लाइक दिस, लाइक परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है? 90 बनाना. क्या मतलब होता है? Sir, right angle, sir. 90 बनाना, राइट एंगल. So now you can see मैंने पॉइंट का नाम दे दिया L. What name I have given? L. So question क्या? Sorry, give me a second. Okay. So statement कहता है if we have chord, if we have what? Chord and we are drawing a perpendicular from center. कहीं और से नहीं जी. कहां से? तो सेंटर से होना चाहिए, कहीं और से नहीं, सेंटर से होना चाहिए. So if we are drawing from the center a perpendicular, chord will bisect. Chord will what? Bisect, sir. Bisect. Bisect कहने का मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे. AL and LB will become equal. Understood? Yes, sir. Take an example. अगर AB हमारा 20 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना? 10. डू यू क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. कोई यहाँ डाउट, कोई शक या सवाल? No, sir. No, sir. कोई शक सवाल कुछ नहीं? No, sir. ओके, इन सबको याद रखना. ओके, Yes. जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा कि अगर कॉर्ड इक्वल हाफ में है and we have drawn a line from the center, so that line will be perpendicular. That line will be what? Perpendicular, sir. Perpendicular. Just उल्टा, मतलब perpendicular draw किया तो half हुआ था, तो half होगा, और line draw किया, that means that line will be perpendicular. Do you Yes. clear with this? Yes, sir. तो इसमें मैं ज्यादा कुछ जोड़ दूंगा नहीं, सिंपल स्टेटमेंट देखो अपलोड किया है. कहता है द लाइन ड्रॉन, क्या कहता है? लाइन ड्रॉन through the center of circle bisect the chord is perpendicular to the chord, right? Yes. मतलब कि जो bisect करेगा, जो half half कर देगा, तो perpendicular भी होगा ना जी, right? Yes, sir. This is the statement given to you. Do you clear? Yes, sir. It's clear. Any problem? No, sir. Okay. उसके बाद एक थ्योरम और भी है, थ्योरम नंबर 8, which is also important. Important क्या? बहुत आसान है. बहुत आसान है. Can you see this? Yes, sir. Read the problem. Read the statement. Equal chords of a circle are equidistant from the center. कहता है कि if we have equal chords like this and like this, ठीक है? Yes, sir. A B C D. स्टेटमेंट क्या है जी? कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, राइट? सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मीन्स ये ओ एल और ये ओ एम, तो ओ एल मस्ट बी इक्वल्स टू ओ एम. मतलब ये ओ एल और ओ एम इक्वल हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अंडरस्टूड? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और सिंपल सी बात है, कॉर्ड अगर इक्वल बन रहा है तो ऑटोमेटिकली वो इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ही बनेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. यू कैन मेक एंड यू कैन ट्राई आल्सो. क्लियर? Yes, sir. तो अभी तक हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े, मैं वापस रिकॉल कर दे रहा हूँ सारे थ्योरम्स. पहला थ्योरम, रेडियस सेम, सर्कल सेम, कॉर्ड सेम, एंगल बाय देम सेम. अंडरस्टैंड? मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. कॉर्ड सेम तो एंगल सेम, कॉर्ड सेम आर्क सेम, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर तो कॉर्ड हाफ, उल्टा कॉर्ड अगर हाफ है तो परपेंडिकुलर, कॉर्ड इक्वल तो इक्वल डिस्टेंसेस. कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कुछ? No, sir. No, sir. कुछ नहीं, ठीक है. गुड. सो नाउ अब मैं आपको इसमें थ्योरम्स नहीं पढ़ाऊंगा, हैं पढ़ने के लिए, बट आई विल नॉट टेल यू थ्योरम्स.
अच्छा, ये पूरा सर्कल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, इट्स नॉट इन सिंगल पार्ट, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कॉर्ड्स की बात करेगा, दूसरा एंगल्स की बात करेगा, सिर्फ एंगल्स की बात करेगा, और तीसरा क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेगा, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। डू यू क्लियर? ओके, तो क्या आप मुझे सारे थ्योरम्स एक बार बता सकते हो, क्या क्या थ्योरम बताया मैंने अभी? देखना है, रीड करना है तो मैं कर देता हूँ, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। ये क्या थ्योरम बताता है, बताओ थ्योरम नंबर 1। The two circles are congruent if they only have equal radii. Sir. यस, मतलब क्या है इसका कि अगर रेडियस सेम है तो सर्कल भी सेम होगा, राइट? Yes, sir. इस थ्योरम में क्या बोलता है बताओ जरा? Sir, if angles subtended by two chords at the center of the circle are equal, then the chords are equal. और उल्टा, कॉर्ड अगर इक्वल है तो एंगल भी सेम होगा जी, राइट? Yes, sir. ओके, इसमें क्या कहता है? If two arcs of the circle are congruent, then the corresponding chords are equal. ओके, और सिंपल सी बात, आर्क इक्वल कॉर्ड इक्वल, देखो ना मैंने शॉर्टकट लिख रखा है, यूज द शॉर्टकट, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, यूज द शॉर्टकट। ये क्या है? आर्क का सिंबल है, राइट? सो आर्क इक्वल तो कॉर्ड भी इक्वल, राइट? ये क्या बोलता है जी? कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो कॉर्ड विल बी हाफ, राइट? इतना स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस सिंपल, आपको समझ में आया या नहीं मुझे वो जानना है, आपने क्या समझा इससे, मुझे वो मतलब है। थ्योरम में स्टेटमेंट क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है। डू यू क्लियर? Yes, sir. मेरा मकसद है कि आपको कैसे भी किसी, आपको उर्दू लैंग्वेज में समझ में आए, फारसी लैंग्वेज में समझ में आए, आपको समझ में आ रहा है, दैट इज माय मेन मोटो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मैं लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट में, एक जरा रुक जाओ, आई विल जस्ट, ओहो पेन उल्टा पकड़ लेता हूँ मैं, आई विल जस्ट राइट डाउन हियर, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इफ OL is perpendicular to AB chord, what is the statement? If OL is perpendicular to AB chord, OL कहाँ से? सेंटर से, right? So AB will bisect. AB will what? Bisect. Therefore, AB will be AL is equals to LB. That is half of AB. Do you understand the statement? Yes, sir. और जस्ट इसका उल्टा, कि अगर ये हाफ हो जाता है तो वो लाइन जो सेंटर से आई है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। डू यू क्लियर? Yes, sir. चलो, ये क्या कहता है बताओ जरा? इफ द chords are equal then they will be equidistant from the center, right? सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, कोई यहां तक शक या सवाल कुछ पूछना हो? No, sir. कुछ भी नहीं, चलो, then we will move for questions. Are you ready for it? Yes, sir. Okay, good. So चलो स्टार्ट करते हैं। I will explain, कुछ मैं प्रॉब्लम्स आप लोग को आपको समझाऊंगा। ये चैप्टर मेहनत का चैप्टर है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है? Yes, sir. हाँ, दिस इज नॉट, मतलब खेल खेल में नहीं करना है। कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? The radius of a circle is 13 centimeters and the length of one of its chords is 10 centimeters. Find the distance of the chord from the center. Find the distance of chord from the center, right? Yes, sir. तो इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है जी? पहले तो एक कॉर्ड बना लो, बना लिया जी कॉर्ड। एक सेंटर बना लो, बना लिया जी सेंटर। डिस्टेंस ड्रॉ कर लो तो डिस्टेंस ड्रॉ हो गया जी, कोई दिक्कत? No, sir. एंड ड्रॉ रेडियस, तो रेडियस भी ड्रॉ हो गया जी, कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. सो ओ ए बी और इसको मान लो एल। सो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, मतलब हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड OL. Can you see that? Yes, sir, I can. We know very well radius is 13, so I can write down this one as 13. Yes, sir. Length of one chord is 10,
तो आपको मालूम है अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 5. Yes, sir. मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. नाउ आर यू गेटिंग दिस ट्राइंगल? ट्राइंगल दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा ट्राइंगल है ये? Sorry, right angle triangle, sir. राइट एंगल ट्राइंगल. पाइथागोरस यूज होगा यहाँ? Yes, sir. We can. कर सकते हैं? Yes, sir. तो गो फॉर इट. मैं अपलोड कर रहा हूँ फिगर वापस से, डोंट वरी. So now you can go apply the Pythagoras, find the OL value. Suppose इसको आपने x मान लिया है तो क्या लिखोगे आप? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिखोगे? Yes, sir. So 169 is equals to x square plus 25. So 169 minus 25 is equals to x square. So x square is 144. So Yes. x is root 144. So x is 12. Can you see that? Yes, sir. जल्दी से इसको खुद से बनाओ. I will not tell. मतलब बनाओ अभी वापस. Why did that happen? Can you hear me? Yes, sir. I can. Yeah, go for it first. हो गया? 1 second, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Give me a moment. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट सेम टाइप क्वेश्चन है. क्या है? सेम टाइप क्वेश्चन में देने जा रहा हूं. जरा आप इसको ट्राई करो. ठीक है? कैन यू ट्राई बाय योरसेल्फ? Yes, sir. नहीं होगा पहले फिगर बनाना. रफ फिगर, बहुत बढ़िया फिगर और अच्छा फिगर नहीं चाहिए. रफ फिगर बनाओ एंड ट्राई. नहीं होगा मैं सॉल्व करूंगा. गो फॉर इट. डन. 1 second, sir. ओके. अभी आफ्टर 3 o'clock कोई क्लास तो नहीं है ना आपकी? No, sir. No, sir. आप फ्री हो ना? Yes, sir. ओके. Sir, it's just that by 3:30, I need to go for another class, sir. ओके बाय. नहीं, आई विल टेक 15 मिनट्स हार्डली, डोंट वरी. मैं सिर्फ 15 मिनट लूंगा आपका. Yes, sir. तो 3:30 पे कौन सी क्लास है? Sir, I have that French class I missed. हाँ? French class, sir. 10th क्लास? The French class. ओह फ्रेंच क्लास है. ओके ओके ओके. हाँ कोई नहीं, मैं बस 15 मिनट्स लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, डोंट वरी.
इसको बनाओ जल्दी से। So 15 centimeters. Okay. How much you told? So 15 centimeters. Good. 15. Nahi. I'm asking chord. What I'm asking? 30 centimeters, sir. 30 centimeter. Right. 30 centimeter would be the chord. Clear? Yes, sir. Okay. I'm going to give you another problem. And these problems are important. Okay. जो भी आज कर रहे हैं. Give me a second. I will close my window and all. बहुत आवाज आ रहा है. Give me a moment. Yes, sir. Yes. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Yeah, now giving you another problem. Yes, I will do it. First, आप इसको read करो, मैं इसको बनाऊंगा. A, B, and C, D are two parallel chords of a circle, which are on opposite sides of the center, such that AB is equal to 10 centimeters, CD is equal to 24 centimeters, and the distance between AB and CD is 17 centimeters. Find the radius of the circle. देखो, इसमें कहता क्या है कि दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, राइट? और दो बोथ आर इन अपोजिट साइड्स, करेक्ट? उसमें ए बी छोटा है तो ए बी छोटा है तो ए बी दूर बनाएंगे. याद रखना, सेंटर के नजदीक जितना जाओगे उतना बड़ा कॉर्ड बनेगा, राइट? क्योंकि डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड, करेक्ट? So now this I have drawn. This is your A, B. This is your C, D. Clear है? And they are perpendicular है, मतलब parallel है. That means I will just show you what does it mean. Can I draw a line like this? Yes. Right? They are parallel. So मतलब ये दोनों 90 बना रहा है. Parallel का मतलब क्या हो गया कि दोनों 90 बना रहा है, right? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. कहता है दोनों के बीच का डिस्टेंस 17 है. मतलब यहां से लेकर यहां तक, मैं इसका नाम दे देता हूं LM. ठीक है, मतलब ये LM जो हो गया, ये टोटल है 17. कितना है ये? 17. कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. अच्छा, क्या हम रेडियस वाला, देखो यहां से इसको ऐड करो और यहां से इसको ऐड करो, बोथ विल बी द रेडियस. Yes, sir. क्योंकि ये रेडियस ही कहलाएगा ना, Yes, sir. Yes. राइट? अच्छा, AL कितना हो जाएगा जी? AB 10 है तो AL हो जाएगा 5. Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा जी? 12 हो जाएगा. Yes, sir. इफ आई एम कंसिडरिंग OM एज X, सो OL कितना हो जाएगा? OL will become how much? OL. Yes, I'm asking for it. ये कितना हो जाएगा? 17 minus X. Simple. जी टोटल लंबाई 10. टोटल लंबाई 10. यहां से यहां 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? तो 8 हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes. What we will do? We will subtract it. Yes, sir. तो सेम काम मैंने किया. OM is X कंसीडर कर लिया. मुझे नहीं पता, टोटल दे रखा है ना, टोटल इज 17, राइट?
नीचे x कर लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा 17 माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. हाँ, No, sir. कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। गिव मी अ मोमेंट प्लीज, मैं फिगर अपलोड कर देता हूँ। होल्ड अ मोमेंट। क्लियर ड्राइंग्स। चलो बहुत बढ़िया जी। यहाँ पे फिगर क्लियर है? कैन यू सी दैट? Yes, sir, I can. Now can you see I have one triangle here and one triangle here. Can you see that? Yes, sir, I can. मेरे पास एक ट्रायंगल है जी OLA और दूसरा ट्रायंगल है OMC। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? No, sir. No. अब चलो दोनों का रिलेशन लिखो। So R is the hypotenuse. So can I write down here R square is equals to 5 square plus 17 minus x का whole square. Can I write that? Yes, sir. और इसमें क्या लिख सकते हैं हम? R square is equals to x square plus 12 square. Can I write that? Yes, sir, we can. दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। क्या हो गए? Two equations, sir. टू इक्वेशंस। दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड देखो, इज इट आर स्क्वायर? Can you see that? Yes, sir, I can. So can we make it both the equations are equal? Yes, sir, they can be equal. They can be Equal, sir. equal, right? So I can write down further here. I can write down here equation 1 से लिखूंगा मैं 5 square, ओहो क्या गड़बड़ी में कर रहा हूं, 5 square plus 17 minus x का whole square is equal to x square plus 12 square. Can we write that? Yes, sir. अब देखो इसमें x ही वेरिएबल बच गया मुझे। So can we find x first? So 17 square, oh sorry, क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 square is 25। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a square minus 2ab plus b square. Can I write like this? Yes, sir. And this is 144. x square cancel। सबको सॉल्व करो। 25 289 कितना हो जाएगा? 25 plus 289 will be 314। 314 minus 34x is equals to 144। 144 को लेफ्ट हैंड लेके आ जाओ। Yes, sir. That is equals to 34x। Solve करो, minus 144, so this becomes 170 is equals to 34x। So x की वैल्यू क्या हो जाएगी guys? 5। मिल गया 5? Yes, sir. कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir, I have no problem. आपको चाहिए रेडियस, करेक्ट? Yes, sir. तो रेडियस आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो रेडियस इज इक्वल्स टू x की वैल्यू मिल गई मुझे 5 plus 12 square which is 25 plus 144 which is 169। So r squared is 169। So r will be root of 169, that is equals to 13 centimeter। Do you clear about it? Yes, sir. इसको नोट करो क्वेश्चन को अच्छे से खुद से। Make a note of it fast। Done? One second, sir.
Hello. Yes, sir, I'm done. Okay, fine. Okay. ठीक है. We are moving ahead. Giving you the problem. In this case, I will upload the figure also for you, and you will try to find out. Yes, sir. Okay. आप एक बार ट्राई करो, नहीं होगा I will help you. Process method is same. क्या मैंने पिछला बताया था? Process and method would be same. Yes, sir. जरा ट्राई करो तो इसको, बहुत आसान है. जरा ट्राई करो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है. Hello. Yes, sir. Yeah, working. Yes, sir. I
7 centimeters. Good. 7 centimeter, perfect answer. Give me a moment. Yes. Give me a moment, please. Yes. Giving one more, Yes. and you can go for that one. Uh, okay. Give me a second. Yes. You should go for this one. सेम तरीका है, प्रोसेस सेम, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा. Go for it. Working. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, go for it.
This is done. 1 second, sir. Sir, I'm getting the same answer as I did last time, sir. No. How it can be the same answer? Hello? Sir, I'm still getting 7 centimeters. नहीं, possible नहीं है. Reason behind it, look here. You are getting this as, I will just show you. OP आपको कितना मिला जी? OP. OP you are getting 4. 12. 12. I'm talking OP. Wait a second. 12 कैसे आ गया OP आपको? Can you tell me? Sir, I did 7. आपको ट्रायंगल ये मिलेगा ना, ट्रायंगल Yes, sir. OPA. ये कितना है? रेडियस कितना है जी? 5. And AB is 6. So this will become 3. So ये 4 होगा ना? Yes, sir. 16, 12 कहाँ से आ गया? And COQ triangle. Look here for COQ. So this is your O, this is your Q, this is your C, this is 5, and CD is how much? CD is 8. So CQ will be 4, so this will become 3. Yes, Am sir. I right? So you need to find PQ. You need to find PQ. So PQ क्या लिखेंगे? OP minus OQ लिखेंगे तो PQ मिलेगा? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. This is 4 minus 3 is equals to 1. इसमें आपने क्या किया था? इसमें आपको कितना वैल्यू मिला था OP का? हेलो? That also I got 12, sir. I did something wrong, sir. बट आपने 7 बोला था मुझे. 12 कैसे हो जाएगा? ये 5 है, ये 5 है, and AB is, so this is 4, so this will become 3. Yes, sir. And this is 3, so this will become 4. So add करो ना total इसको. Can you add them? So it will become 7. Yes, sir. So गलती कहाँ करी है? चेक करो, दोनों सही करो. Please do the correction. Done. Yes, sir. Give me a moment. Give me a second, please. Give me a second. Okay. Giving other one. एक मिनट रुक जाना, दे रहा हूँ क्वेश्चन. और आपके पास क्या RS अग्रवाल है ना? Yes, sir. I have RO. So you can go for first exercise and examples. Do you understand? Yes, sir. Okay. You can go for this problem right now. इसको फिगर भी बनाओ और सॉल्व करो खुद से, जरा ट्राई करो. तो देखो इसमें सारे तो नहीं बन पाएंगे, बट जितना हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना. ठीक है? Yes, sir.
Can you hear me? हाँ चलो चलो करो. Done? Yes, sir. So the first one is 1 centimeter. Good. And so the second one is 7 centimeters. Good. Okay. Okay, give me a moment. Yes, sir. ठीक है. So now you can leave. And आपको homework बता दिया मैंने, right? Yes, sir. So go and try to solve it. Fine? Okay, sir. Okay. And wait. Yes, sir. Tomorrow is Saturday, right? एक सेकंड रुक जाओ. Tomorrow is Saturday. संडे को आपका बायो रहेगा ना, right? Yes, sir. Okay. संडे को आपका बायो रहेगा. And this Saturday, ठीक है. So we will meet on Monday directly. Okay? Okay. Yeah. Okay. Bye. Take care.